Amazon पर बहुत जल्द एक मेडिकल ड्रामा रिलीज होने वाला है जिसका बैकड्रॉप है मुंबई में 26/11 को हुआ टेरर अटैक। और जिस तरह का टीजर सामने आया है काफी प्रॉमिसिंग लगा है। एंसेम्बल कास्ट ऐसी है जिससे देखने का मन करेगा एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर जो है उनका काम हमेशा से पसंद किया है। कुल मिलाकर इस सीरीज में देयर आर रीजंस टू वॉच आउट फॉर। और जैसा कि मैंने कहा कमाल की एंसेम्बल कास्ट है, उन्हीं में से एक कमाल के हैंडसम एक्टर सत्यजीत इस वक्त हमारे साथ हैं। A warm welcome to you on Punjab Kesari Navodaya Times, Satyajit. Thank you so much, Nidhi. Thank you for having me over. My pleasure. और जिस तरह से मैंने कहा सीरीज में बहुत सारे रीजंस हैं टू लुक आउट फॉर और प्रोमो बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा रिस्पांस इनफैक्ट उसको मिल रहा है। So how is the feeling अब you're nearing the release? Quite excited. Yeah. Looking forward to the release and yes. What do I say? It's an absolute privilege to represent a community which has not been represented the way we did it, you know. And it's not just fluff and superficiality of being a doctor. There is a reason why we call them now, because हमारी vocabulary में इसके पहले frontline heroes था ही नहीं। Definitely. 2 साल पहले तो पिछले 2 सालों में हमें जो समझ आई है उनकी अहमियत, and it's quite something that जब हमने शो खत्म किया था उसके तुरंत बाद पैंडेमिक शुरू हो गया था। And on the group chat we used to talk about कि यार we never saw this coming for all of us actually. Yeah. It was so bizarre and out of a dystopian film. So at this point of time I think it's an you know कुछ होते हैं किरदार जो आप as an actor आप अलग-अलग किरदार करते रहते हैं, लेकिन over here this is something which is extremely noble and this is something which is for me beyond professional and passion. It has become a little spiritual because the more I say the less it would be. तो आपके रोल के बारे में अगर बात करें तो क्या है आपका कैरेक्टर एंड हाउ डिड द सीरीज हैपन टू यू? I got a call from the casting agency of Kavish Sinha. He asked me to come and test for it. They sent me a scene. मैंने पढ़ा, मैं गया, मैंने टेस्ट दिया, and usually because till the time you don't become the star and people don't come to pitch you the film, वो जद्दोजहद तो चलती रहती है. So I was like, this is one of the tests I gave. I forgot. 3 days after that, I got a call कि Nikhil sir wants to meet you. I was like, wow. Because Nikhil Advani, you know his body of work. Definitely. And I went to meet him. He explained me the entire thing. I was like, sir, मुझे script मिलेगी पढ़ने को. Like, why not? So he was like, he gave me the script. I read the script, and for me, when I'm reading a material, it's like a virtual reality game. You know, it should just come in front of my eyes the way it should unfold. And I remember 12:30 से 5:30 के बीच में रात को सुबह I finished it, and I was like, damn, I need to be a part of this. And this is something which is a definite page turner on page and screen में, तो फिर once you're into it, I'm sure आप बदल नहीं पाएंगे, the OTT whatever. Yeah. And what is my character like? My character is he's a simple guy. His name is Ahan Mirza. He comes from there's this neighborhood in Mumbai, Bhindi Bazaar. तो भिंडी बाजार का लड़का है ये, कंजर्वेटिव मुस्लिम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है। शायद उसकी जिंदगी में while he was growing up ऐसी कुछ चीजें हुई थी जो जिसके कारण वो उसने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर बनने के सिवाय। एंड जिस स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से वो आता है वहां पे इट वाज वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे एंड डू एनी मीनियल जॉब, बट टू becoming a doctor is a different ball game altogether. You know what it is. Correct. But still उसने मेहनत करके उसने एक जगह बनाई अपने लिए, लेकिन there's a personality disorder that he suffers from. This condition is called imposter syndrome. So no matter what you become, you constantly feel like a fluke. Okay. And once you become a doctor, you can't be a fluke, right? Correct. But that's what he is, and a simple guy who's not trying to be heroic, who's not trying to prove a point, just with his blinkers on, he's trying to do what he's assigned for. And फिर just ऐसी आपदा आ पड़ती है, and all these not quintessential hero characters, but they end up doing stuff which are quite heroic. Correct. And he's a quintessential underdog that I feel कि आप जब देखेंगे उसे तो पहले वो invisible लगता है आपको, and then duck. So it was quite a thrill, and this is my most internalized part.
जो लोग एक्टिंग से वाकिफ नहीं है उनको मैं सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ कि ऐसे किरदार जहां आप बहुत कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन आप कॉन्स्टेंटली उस कैरेक्टर के साथ जर्नी में जा रहे हैं, एंड हाँ। इट्स माई जॉब टू मेक यू फील व्हाट आई एम फीलिंग, सो आई जस्ट होप वो रेजोनेट हो लोगों के साथ भी। ओके ओके अच्छा, जैसे यहाँ पे आप एक मेडिकल एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जी और जैसे मैंने मोहित से भी बात की थी, निखिल से भी बात की, तो उन्होंने कहा बाकायदा वर्कशॉप्स अटेंड की थी, नॉट जस्ट द एक्टर्स बट ऑल्सो द जी डायरेक्टर, पूरी टीम जी ने, ताकि जो जी मेडिकल जार्गन्स हैं कहीं पर यू कांट गो रॉन्ग विद इट, बिकॉज जब ऑडियंस उसे देख रही है तो हम एक्टर्स ना देख के वाकई डॉक्टर्स को देखें। तो मुझे बताइए वो वर्कशॉप का कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा, एंड हाउ मच डिड दैट हेल्प? it helped a lot. It helped a lot because there are characters that you play. You go on set, you improvise your lines, इधर का उधर कर देते हैं आप जब तक उसकी मीनिंग सेम हो। लेकिन यहाँ पर you cannot play around with the dialogues because the pronunciation, the punctuation, everything needs to be bang on. हमने कुछ 15 से 20 दिन की वर्कशॉप की थी जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट पे जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उसे समझने की कोशिश की। डॉक्टर शेख जो हमारे मार्गदर्शक थे जिन्होंने इतने प्यार से हमें पेशेंट्स के साथ सिखाया, ही इज सो क्यूट, लिटिल पॉन्ची, लिटिल गाय। देखो जो मैं 8-9 सालों में सीखा हूं मैं तुम्हें 15-20 दिन में सिखाने की कोशिश करूंगा, लाइक हम सीखने की कोशिश करेंगे, एंड fake it until you make it, so we you know what it is, that's what we've done, but मेरे ख्याल से पता है निधि, ये भी होता है कि हर एक प्रोफेशन के पीछे हम देखते हैं कि हाँ ये पुलिस वाला है, ये जर्नलिस्ट है, ये डॉक्टर है, लेकिन उसके पीछे एक इंसान भी है ना। हाँ। उस इंसान की खुद की एंजाइटीज, खुद का फियर, खुद की इनसिक्योरिटी, मेरे लिए वो डेवलप करना भी बहुत जरूरी था। आई रिमेम्बर निखिल सर ने किसी को दिखाया, बोल रहा है ये लड़का हकला क्यों रहा है, इसको डायलॉग नहीं आता क्या? लाइक तुम पूरा शो देखो, व्हेन यू हैव दिस डिसऑर्डर, I'm the Dilip Kumar of the world, I'm the Irfan Khan, but when it comes to interaction with people, आपको बस एक random analogy दे रहा हूँ, it's very difficult for me to speak. So a lot of people like, why are you fumbling? Why are you like, looking so sehma hua? But I'm sorry, that's not Satyajit Dubey, that's Ahan Mirza, that's a character. So please spare me the horror. Yeah, it's kya bolu yaar, it's an absolute privilege to represent this community and of doctors and the fraternity, and wow. करेक्ट, बट जिस तरह से प्रोमो में देखने के लिए मिला, निखिल से भी जिस तरह से बात हुई, सर इट्स अ वेरी फास्ट पेस्ड सीरीज, जहां पर उन्होंने कॉन्शियसली ये रखा है कि कैमरा मूवमेंट भी बहुत फास्ट रहे और हर मोमेंट में ऑडियंस जो है आप लोगों के साथ कहानी में आगे बढ़ते रहे। इतना इंटेंस ड्रामा है, आई एम श्योर बहुत सीरियस सीन्स रहे होंगे, पर ऐसा कभी रहा सत्यजीत की सडनली कुछ हो गया और हंसी मतलब रुक नहीं रही है? यार वो ना, हम जो एक तो सीनियर डॉक्टर्स हैं और फिर जूनियर डॉक्टर्स हैं। सीनियर डॉक्टर्स हैं वो हमेशा हमारे जूनियर नताशा मैम, मृण्मयी ज्वाइन करते हैं, और ये बेसिकली 5 डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर ही पहाड़ टूटता है कि भाई थोड़ा मैं, अगर मेरे पास समय अगर मैं आपको बता सकूं, तो एक तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या स्थिति होती है उससे हम सब वाकिफ हैं। पहली चीज ये तो उनका रेगुलर स्ट्रगल है। दूसरा, आपका इन्फ्लक्स ऑफ वुंडेड पीपल एंड द बॉडी स्टार्ट्स की, अगर आपका 200 बेड की कैपेबिलिटी है तो आपके पास 500 लोग आ रहे हैं यार, और वैसे ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ढक बैठा हुआ है। तीसरा, फिर द टेररिस्ट्स दे ओपन फायर एट द हॉस्पिटल, दे एंटर्ड द हॉस्पिटल, तो इट्स परत दर परत दर परत इतने उनके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर वर सीन्स जहां पे हंसी छूट जाती थी, लेकिन वो बहुत ही रेयर हुआ करता था, बिकॉज जैसे आप टेंशन की बात कर रहे थे ना, मैं टेक्निकलिटी में जाऊंगा थोड़ा। इस सीरीज को जब आप देखेंगी, इट्स एट पार विद एनी अदर इंटरनेशनल शो। फर्स्ट, सेकंड, इतने लंबे लंबे टेक्स डिजाइन किए थे निखिल सर ने कि अगर आप एक बॉडी लेके आ रहे हैं स्ट्रेचर पे, टक 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 टक, फिर वो दूसरा इंसान क्या कर रहा है, तीसरा इंसान क्या कर रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या हो रहा है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर 40 to 50 to 60 आर्टिस्ट्स टुगेदर वर्किंग इन सिंक। किसी एक का भी थोड़ी सी गलती हुई, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। एंड दीज सीन्स वर की बॉडी इज ओपनड अप, कोई किसी का वूंड साफ कर रहा है, कोई ग्रेनेड का कुछ। इट वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंड you're so much on your toes that you can't afford to I'm trying to mind my language because we are so used to, right? Don't mess up, don't mess up. So वो पल बहुत कम मिलते थे जब हाँ करते थे, बट मेरी थोड़ा क्लाउन गिरी करने की आदत है, तो इन बिटवीन कभी कभी मैं मस्ती करता रहता था अपनी।
So Okay. yeah, that's but it's a show that will suck you in. Correct. मुझे कई लोग बोल रहे थे कि यार इतनी कहानियां बनी है 26/11 पे, इसमें क्या Hmm. नया है? Hmm. तो मुझे ना मेरे रैंडम एनालॉजीज आती है मेरे दिमाग में, मतलब यार ये क्रिकेट का पिच है, एज अ बैट्समैन आपको स्टेडियम ऐसा दिख रहा है, एज अ बॉलर आपको स्टेडियम ऐसा दिख रहा है, जो स्लिप में खड़ा है उसको ऐसे दिख रहा है, करेक्ट? तो Correct. आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना चीजों को. Hmm. um, और मेडिकल थ्रिलर ऐसा कुछ आया ही नहीं है हमारे यहाँ. एक वो संजीवनी आता था, ला 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 ला, या हमारे यहाँ वो बधाई हो आपको बेटा हुआ है, या Correct. मुझे माफ कर दीजिए मैं आपके पिताजी को नहीं बचा सका. इट्स नॉट Hmm. दैट. It's Hmm. people will be able to understand and empathize with the plight of doctors and the medical workers, from everyone, from Correct. top to bottom. Yeah. Correct. And also, जैसे कि शुरू में भी आपने कहा था, COVID-19 has given us a Oh, newfound respect for the frontline yes, workers because of course. honestly, we did not know that this term existed. हमारे लिए कोई डॉक्टर था, कोई नर्स था, but now they're all heroes in white, Yeah, frontline yeah, workers. yeah, yeah. You think with the series that respect is going to grow multifold? Oh, yes, definitely. Definitely. And I'm telling you, the timing is so bizarre and so surreal at the same point of time. It's Hmm. कई बार बोलते हैं ना, reality is stranger than fiction. मुझे तो लग रहा है वही हो रहा है, because and a lot of people said, why didn't you make a series on COVID? अरे भैया, कई बार people can be really stupid यार. I'm really sorry, but आप कोई भी कहानी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा एक वक्फा निकलना चाहिए, उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसके बारे में बात. अभी भी लोग उस wound को झेल रहे हैं. Hmm. अभी भी. तो ये कहानी तो बहुत पहले कंसीव हो चुकी थी. आप डॉक्टर्स को जैसे काम करते देखेंगे, वो सब रियल टाइम हो रहा है. जैसे 8 एपिसोड की सीरीज है, 45 मिनट से 1 घंटे का एक एपिसोड है, तो आप रियल टाइम में घटना को घटित होते हुए देख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि 1 महीना फिर चौथा महीना जैसे कहानियां अमूमन होती हैं. तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि क्या स्ट्रगल्स होते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि डॉक्टर भी इंसान है यार. एक वो फसाड के पीछे के इंसान है, जो उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज है, उसके खुद की फैमिली इश्यूज हैं, उसके खुद के पेन है, उसके खुद की एंजाइटी है, जो डॉक्टर Correct. आपको संभालने की कोशिश कर रहा है. बेचारा खुद एंग्शियस है अपनी लाइफ को लेकर. जैसे कि हान मिर्जा. बट फिर आप करते हैं वो चीजें जो जिससे आप हीरोइक बन जाते हैं, वो हीरोइक सिचुएशन हो जाती है. ओके ओके. टॉकिंग अबाउट सिचुएशंस, टॉकिंग अबाउट जर्नी, अगर हम आपकी बात करें सत्यजीत, बिलासपुर से निकला हुआ एक लड़का अपने सपने पूरे करने मुंबई आता है. कैसा रहा ये सफर एंड हाउ वुड यू सम इट अप सो फार? मुझे ना एक चीज रियलाइज हुई है पिछले कुछ दिनों में. मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए. मुझे अपनी आत्मा का वैलिडेशन मिला हुआ है. मुझे बस आपका प्यार और अप्रिसिएशन मिल जाएगा, वो बड़ी बात है. 2011 में मेरी पहली फिल्म आई थी, शाहरुख खान साहब ने लॉन्च किया था. हमारा बिजनेस ऐसा है कि चली तो चली, नहीं चली तो फिर भूल जाते हैं लोग, या आपको बहुत ही ऐसे किरदारों में स्लॉट करना चाहते हैं जहां मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं था, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ. सेकंड थिंग, I'm immensely grateful, yeah, because I've sustained all these years without compromising in terms of my sensibility and the artistic view that I have. And I've grown. When I came to Mumbai, I was 16. Today I'm 31. And I think this is the best phase of my life. I wouldn't call it struggle because I was constantly evolving and becoming better. When nobody believed in me, I knew what I am. And I don't know where this belief comes from, but बिलासपुर में वो जो पंप था जिससे 100 गुना ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से. हाँ, बिलासपुर में बहुत प्यार बड़ा मिलता था. जब भी स्टेज में कोई भी नौटंकी जब मैं करता था, तो वहां से वो कॉन्फिडेंस मिला कि इफ आई कैन, इतने लोगों को आप सम्मोहित कर सकते हो, तो वहां जाके क्यों कुछ नहीं कर सकते. और काफी हार्ट ब्रेकिंग जर्नी भी रही है, लेकिन यार आई थिंक द मोर यू ब्रेक द मोर यू ग्रो. इट्स लाइक अ मसल बिल्डिंग ना. आप जब वर्कआउट करते हैं तो मसल टूटती है, उससे वो बढ़ती है. करेक्ट. एंड राइट न्यूट्रिशन फॉर योर मसल इज प्रोटीन. फॉर राइट न्यूट्रिशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग is knowledge, is understanding, is having a better perspective about everything. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे यूनिवर्स ने ऐसे 8-10 साल की इंटर्नशिप दी थी कि जाओ फील्ड पे जाके सीखो. अभी तो मेरा जॉब लगा है, अब देखिए मैं क्या क्या करता हूँ. Great. So talking on that note, देखिए अभी क्या क्या करते हैं. Tell me किस तरह के रोल्स हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आप डेफिनेटली हिस्सा बनना चाहें. चेकलिस्ट में क्या है? देखिए मेरा ना बड़ा सिंपल है कि I want to have a very diverse career where you forget who Satyajit Dubey is.
I'm the guy when you see him regularly, that's what the guy is. But every time you see a character, I really, it's my, मेरी तहे दिल से यही कोशिश रहती है कि मैं वो किरदार में ढल जाऊं, वो मैं बन जाऊं. कितना होता हूं कितना नहीं होता हूं वो दूसरी बात है, बट मेरा एफर्ट वही है कि अगर आप, कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई इसलिए वो चर्चा में नहीं आ पाती अनफॉर्चुनेटली कई बार, लेकिन कल के दिन जब लोग उठा के मेरा काम देखेंगे उनको ये रियलाइज होगा कि ऑलवेज कभी कभी अ स्वीट गीक, रोशन अब्बास की जो फिल्म थी, जो बहुत प्यारा सा लड़का है, मासूम सा. दूसरी फिल्म कैरी ऑन कुत्तों, जहाँ वो राउडी बलिया का छिछोरा, जो पतला दुबला सा है लेकिन हीरोइज्म, वो गुड़ाखू और बिड़ी फूकते हुए. तो मैं 3 महीने, पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं था कि टैन कर सकते हैं मेकअप से, तो मैं ना भागता रहता था गर्मी में कि मैं टैन हो जाऊं. फिर किसी ने बोला तुम बेवकूफ हो यार. हाँ यार मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे पता नहीं था. तो बाल बिल्कुल रंग लिए और बिल्कुल उसी लखनऊ बलिया में रहा मैं, वहां के डायलेक्ट को पकड़ने के लिए. बांके की क्रेजी बारात, there's a double role in that. Then Prasthanam, I played an antagonist against Sanju sir, Jackie Dada, you know, and so many big actors I've worked with, starting from SRK to Sanjay Mishra to Sanjay Dutt to Jackie Shroff to Manisha Koirala, now Mithunda for my next series. Yeah, I can't even. जब आप बोल रहे थे ना बिलासपुर से, मेरे लिए जिस दिन मैंने वो ट्रेन से कदम यहाँ प्लेटफॉर्म पे रखा था ना, वहीं से मेरी सक्सेस शुरू हो गई थी. कि यार मैं आ गया हूँ यहाँ पे, अब हर स्टेप ऊपर ही जा रहा है. करेक्ट करेक्ट. या a diverse career जहाँ पे when I look back, I should be extremely proud of what I've done. And it's, you know, sometimes Nidhi, it can be physically and mentally really painful, but it's worth it. It's worth Definitely. it. And we all wish कि आपका करियर ग्राफ ऐसे ही ऊपर जाता रहे, सीढ़ी आप ऊपर ही चढ़ते रहे. You should not ever look back. Thank you so much. Lastly, आपके फैंस को हमारे मीडियम से आप क्या कहना चाहेंगे सत्यजीत? फैंस आप हैं तो हम हैं. It's as simple as that. And I really hope जब आप मुंबई डायरीज देखें तो आपको हमारा काम पसंद आए, सीरीज पसंद आए हमारी, और आने वाला जो मेरा काम है, एक Amazon की और एक नई सीरीज है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, वो आने वाली है. एक नई फिल्म पे मैं काम शुरू कर रहा हूँ. जिस दिन शो रिलीज हो रहा है उसी दिन मैं आई स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट फिल्म. तो कोशिश जारी है बेहतर बनने की, आप लोगों का प्यार पाने के लिए. एंड आई होप आप लोग का सपोर्ट बना रहे. Thank you so much, and lots of love to each one of you who's watching the interview. Okay, so definitely आपके fans देखेंगे, and I'm sure आपका काम उन्हें पसंद आएगा. And I wish you all the luck, Satyajit, for the success of Mumbai Diaries. Ahan Mirza को लोग याद रखें as a character on the series, and आगे भी आप future में जो काम करें, and I hope we have many more such interactions. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely speaking to you. Same here. Thank you so much.